Students, now we'll discuss the important points of chapter 4. As we are revising this chapter, you must know the important features of animal kingdom. That means they are multicellular, they are heterotrophic, holozoic nutrition they show करते हैं, reproduction भी various types of reproduction हम देखेंगे. But first of all, what you should know about it is that what is the basis of their classification. Now before we begin, open your book, page number 46. ठीक है, the chapter is started from this page number. So first of all we'll see the basis of classification. What are the basis? जो plants से बिल्कुल different है ना, plants में basis of classification अलग था, animals में different है. Now the basis of classification is what? एक तो level of organization, how the cells are arranged in the body, then body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory and reproductive system. So these are the main basis of classification. सबसे पहले before we start the important characteristics of different phylum, I will explain you the important basis of classification so that when these terms come in your characteristics, फिर वो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा. So now first of all I will explain you what is complete and incomplete digestive system. जैसे जैसे evolution हुआ, the organisms become complicated, but before जो earlier phylum है, जो पहले जो animals produce हुए, उनमें digestion कैसा रहता है? Incomplete digestive system है. That means only one opening is there, that is mouth. Yeah, we can say only one opening is there. And complete digestive system में two openings are there, mouth and anus both. So if any characteristics में अगर ऐसा लिखा होता है कि digestive system is complete या incomplete, तो आपको समझ आ जाएगा. Then open and closed circulatory system, which means if the circulatory system is open, that means the organs are just bathing in the blood. The blood is not confined, किसी कोई blood vessels नहीं है, blood वैसे ही body में है and the organs are floating in it या bathing in it. Closed circulatory system जो highly evolved organisms हैं, animals हैं, उनमें closed circulatory system था. That means blood is flowing inside the arteries, veins and capillaries. So the next feature what you have to remember is symmetry. Now on the basis of symmetry, आप page number 47 देखो अपने book में. Page number 47 पे symmetry given है, ये दो diagrams given है 4.1 and 4.1 का A and B, which is showing radial symmetry and bilateral symmetry. So two types of symmetry is seen in different organism. Either the animal will be bilaterally symmetrical, that means the body can be cut into two equal parts from the center. सिर्फ लेकिन एक ही प्लेन से हम उसको कट कर पाएंगे, then we will get the two equal parts. And radial symmetry में we can cut the animal from any plane, but the cut should pass from the center. तो वो radially symmetrical होगा, है ना. Radially symmetry के examples are given coelentrates, ctenophores and echinoderms. तो जैसे starfish है, वो radially symmetry है. Then bilaterally symmetrical में arthropod है, humans है, mammals हैं, तो all are bilaterally symmetrical. And sometimes the animal may be asymmetrical also. ठीक है, asymmetrical means there is no proper symmetry, जैसे कि porifera में. Second, next is on the basis of germ layers. Germ layers होती हैं जो embryonic development के time में बनती हैं. तो on the basis of number of germ layers, if the germ layers are 2, the animal will be called as diploblastic, and if the germ layers are 3, then the animal will be called as triploblastic. तो diploblastic में जो दो germ layers होंगी वो ectoderm and endoderm है, and triploblastic में ectoderm, endoderm के अलावा mesoderm भी है. ठीक है, तो there are 3 germ layers. Then we come to coelom. Coelom क्या है? Actually एक अलग से body cavity है in which organs are situated. But if जो earlier animals थे उनमें coelom नहीं था, तो those animals are called acoelomate. आप अपनी book में page number 48 पे आइए. It is given on page number 48 and diagram is also given, that is figure 4.3, in which you can see that how the coelom is there. Acoelomate animals के जो ये transfer section लिया हुआ है coelom का, तो how it looks. Then as I told you, acoelomates means coelom is absent. तो जो earlier phylum है वो acoelomates कहलाएंगे, जैसे कि Platyhelminthes. Then coelomate जो higher organisms है like annelid से लेकर chordata तक सब coelomate हैं, they have true coelom. बट इन दोनों के बीच में जब इवोल्यूशन हो रहा होगा, द चेंजेस वर टेकिंग प्लेस, तो एक स्यूडोसिलोम का भी फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, तो दोज एनिमल्स आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स और इसमें एक ही फाइलम है एस्केलमेंथिस.
सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है। देन नाउ वी विल स्टार्ट द डिफरेंट फाइलम। इसके अलावा जैसे सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, ये टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। सेगमेंटेशन मीन्स द बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, एंड नोटोकॉर्ड इज द नर्व कॉर्ड, ये नर्व से बनी हुई रहती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, द कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। जैसे हम स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे एक फिगर 4.4 भी है, यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो, द फ्लो चार्ट में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ द किंगडम एनिमेलिया इज क्लासिफाइड। ओके, देन फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं। विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइलम। लाइक पॉरीफेरा है तो पोर्स, आपको फाइलम के नाम से समझ में आ जाएगा, पोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। स्पॉन्जोसील is the cavity which is present in them, then the cells are present, the cellular level of organization है, ये बात याद रखनी है, cellular level of organization है, डिप्लोब्लास्टिक है एनिमल, एसिलोमेट है, बॉडीज एसिमेट्रिकल, हर्माफ्रोडाइट है। ओके, सो पोर्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल एक एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखने, लाइक साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। सेकेंड फाइलम इज सिलेंट्रेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज निडेरिया। निडेरिया इसको क्यों कहते हैं, जैसे कि आप बुक में देखो पेज नंबर 50 पर ये डायग्राम्स गिवन है, इनमें टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं आपको, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। जैसे हाइड्रा का एग्जांपल अपन देखें तो हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें कुछ स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज नीडोब्लास्ट विच हेल्प्स इन एनकरेज, एनकरेज मीन्स ग्रिप बनाने में, किसी भी जगह पकड़ बनाने में काम में आते हैं, कैप्चरिंग ऑफ फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ दीज सेल्स, ठीक है। 2 जनरेशन इसमें देखी जाती हैं, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। तो सिलेंट्रेट मीन्स होता है कैविटी, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। नेक्स्ट फाइलम है टिनोफोरा, ये बहुत छोटा फाइलम है, इसमें हमें हमारी बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल गिवन है, प्लूरोब्रैकिया, विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इसमें कॉम्प्लेट्स है और बायोल्यूमिनेसेंस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम, दैट मीन्स दे कैन एमिट लाइट, तो ये लाइट एमिट करने का इनमें वो रहता है। देन द नेक्स्ट फाइलम, इंपॉर्टेंट फाइलम जो है प्लेटीहेलमिन्थिस है, in which flat worms, platyhelminthes, helminthes means worm and platy means flat, तो flat worms हैं, the body is bilaterally symmetrical, ये तो है इसे, triploblastic, acoelomate, these are the general characters। now as they live as a parasites in our body, parasite के form में रहते हैं ये, तो they have some structures which help them to attach into the intestine या stomach में attach होने के लिए, तो suckers and hooks जिसकी मदद से वो बॉडी में ग्रिप बनाते हैं, तो दीज आर प्रेजेंट क्योंकि उनको पैरासाइटिक लाइफ लिव करनी है। ओके, देन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। एक टर्म आपको और याद रखनी है, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि इफ द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इट मीन्स नो लार्वल स्टेज, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो मीन्स एग के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद एडल्ट बनेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम आर टेपवर्म, टीनिया सोलियम कहते हैं जिसको, एंड लिवर फ्लूक्स, फैसियोला हेपेटिका, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम लेते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस, दैट इज राउंड वर्म। राउंड वर्म में ये भी वर्म है, ये भी पैरासाइटिक भी फॉर्म में लिव करते हैं, एंड दे आर डायोशियस मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे हैव स्यूडोसिलोम, है ना, ये अभी हमने डिस्कस किया था। द नेक्स्ट इज एनिलिडा। एनिलिडा मीन्स एन्यूलस लाइक, जिसको हम रिंग लाइक कहते हैं, तो इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है, रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट है पूरी बॉडी में। इसका मेन एग्जांपल है अर्थवर्म, लीच, है ना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिलिडा, एंड पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, करीब 100 to 150 सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड सम ऑफ देम हैव पैरापोडिया, दैट मीन्स जो अपेंडेजेस हैं मूवमेंट में काम में आते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिलिडा। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का, सॉरी नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, एंड आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स, तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द लेग्स, जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट है विच हेल्प इन द फास्ट मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। अदर कॉमन फीचर्स यही है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड,
एंड सीलोमेट, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है कि बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, लाइक दिस। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप फिगर 4.12 में देख सकते हैं। लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, एंड देयर आर मेनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम इज मॉलस्का। मॉलस्का मीन्स जो हार्ड शेल, मतलब बॉडी तो इनकी सॉफ्ट होती है बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड शेल। जो सीप वाले, जो शंख वाले एनिमल्स होते हैं वो मॉलस्का में आते हैं। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अदर देन द अदर जनरल बॉडी कैरेक्टर्स तो है ही सही, इसके अलावा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। इनमें एक मेंटल कैविटी भी होती है एंड रेस्पिंग ऑर्गन जिसको रेड्यूला कहते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स, पायला, पर्ल, पर्ल जिससे बनता है, पर्ल ऑयस्टर भी इसी में आएगा, स्टारफिश एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस किंगडम। देन वी कम टू इकाइनोडर्मेटा, दैट इज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं, कांटे कांटे से लगे होंगे, जैसे कि स्टारफिश इसमें आ जाएगा। द एनिमल्स हैव, एक इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जिस भी फाइलम का कोई अगर स्पेशल कैरेक्टर है वो यू आपको लर्न होना चाहिए। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा। एग्जाम्पल्स अभी बताया मैंने आपको, क्यूकुमेरिया दैट इज सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्यों कहते हैं? हेमिकॉर्डेटा मीन्स हाफ, इट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है, एंड हाफ इट इज मतलब एक्चुअली इवोल्यूशन हो रहा है, इवॉल्वमेंट हो रहा है कि नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हेमिकॉर्डेटा मीन्स हाफ कॉर्डेटा, तो सम कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा एंड सम ऑफ नॉन कॉर्डेटा। एग्जाम्पल इज बेलिनोग्लॉसिस। नाउ वी कम टू कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स में क्या होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, देन हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दीज आर प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स। अब ये बहुत ही बड़ा फाइलम है, इट इज़ वेरी लार्ज फाइलम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में भी कुछ एनिमल्स आएंगे, सिफेलोकॉर्डेटा देन वर्टिब्रेटा, एंड इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा तो वो वर्टिब्रेटा है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। तो ये डिफरेंस है इसमें। अब हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा मीन्स वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट कैसे होगा कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी एंड नोटोकॉर्ड इज देन रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट कंडीशन। Now vertebrata is again divided into agnatha and gnathostomata. Agnatha means jawless animals, jawless, jaw नहीं है उसमें. Gnathostomata means they have jaws. Now gnathostomata is again divided into pisces and tetrapods. Pisces means fishes. Fishes are again of 2 types, bony fishes and cartilaginous fishes. तो in detail हमने पहले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं. In short मैं आपको बता दूं, cartilaginous fishes have only the skeleton made up of cartilage, जबकि bony fishes have both bone and cartilage, and some other differences are also there. You can refer to page number 56 and 57 for the other differences, and some diagrams are given. You can refer to the diagram, page number 57 figure 4.20 and 4.19 on page number 56. ठीक है, आप इसके डायग्राम्स को देख सकते हैं एंड यू कैन see other differences also. जैसे कि air bladder is present in bony fish, it is absent in cartilaginous fish. Then we come to tetrapods. Tetrapods means 4-legged animals. जितने भी 4-legged animals हैं, like start करते हैं हम जैसे एम्फीबिया, है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे. एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये टेट्रापोड्स में आ जाते हैं. तो मैं जल्दी से आपको कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं. एम्फीबियंस means which can live on land and water. Now the important characteristics क्या है, देखो पेज नंबर 71 पे, सॉरी 57 पे, कि हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड है. ईयर, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है, टिम्पैनम के फॉर्म में प्रेजेंट है. क्लोएका इज प्रेजेंट विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का काम करता है.
एंड दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आपको ये याद रखना है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मीन्स दे कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा, जिसकी वजह से उनको कई बार जब टेम्परेचर या एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होता है तो दे गो फॉर हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ओके, देन दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड हार्ट इज 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल मीन्स 3 चैम्बर्ड हार्ट है। फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास पेज नंबर 58 पर, फिगर्स आर ऑल्सो गिवन, ठीक है। पेज नंबर 57 पे जैसे फ्रॉग है, सैलेमेंडर है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। नाउ वी कम टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हैव हार्ड स्केल्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है। दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स they cannot keep their body temperature constant. Fertilization in internal, they are oviparous and development is direct, that means no larval stage is present, and they have hard and dry scale on their body. For example, chameleon, crocodilus, chilon, naja, snake वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। थर्ड इज एव्स। एव्स में बर्ड्स आ जाएंगे आपके। नाउ एव्स दैट मीन्स बर्ड्स हैव द एबिलिटी टू फ्लाई। तो फ्लाई के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हॉलो बोन्स हैं, ठीक है, लाइक दिस विंग्स, 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स। एंड हियर दे आर होम्योथर्मस। होम्योथर्मस मीन्स दे आर वार्म ब्लडेड, दैट मीन्स दे कैन कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। देन कम्स मैमल्स। मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दे हैव एक्सटर्नल ईयर, they are warm blooded, they have 4 chambered heart, all these characteristics are of mammal, and examples of mammals are bat hai there are many examples of mammals, humans hai, rat, cat, dog, camel, so many number of examples are there. So these were all the characteristics of all the phylum, all the classes, ठीक है। Now come on page number 60, table 4.2. तो you can revise, you can have a review of all the phylum के सारे characteristics के जो important extract है या summary कह सकते हैं, you can revise through this table. So children, this was all about the important points of this chapter. Now we will discuss some of the important questions which are given in your book. So these are the some of the important questions of chapter 4. Let us discuss. Like we are starting with question 3. How useful is the study of nature of body cavity and coelom? अभी हमने डिस्कस किया था what is coelom, how it is present in our body, किस तरह से अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी एक्चुअली विच इज फॉर्म बिटवीन गट वॉल एंड द बॉडी वॉल लाइंड बाय मीजोडर्मल सेल। मीजोडर्म जो लेयर है उसके हेल्प से ये सीलोम कैविटी बनती है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इफ इट इज़ प्रेजेंट or it is absent. So it is important criteria for animal classification, and the animals with bilateral symmetry are further classified into 3 groups. तो इस हिसाब से 3 तरह के animals अभी हमने पढ़े भी थे। coelomates which have true coelom, for example annelida से लेकर chordata तक। pseudocoelomates which have not proper coelom but coelom का formation start हो जाता है। तो mesoderm is present in scattered pouches between the ectoderm and endoderm, for example Aschelminthes, सिर्फ ये राउंडवर्म ही इसमें आते हैं। acoelomates में the body is not having coelom, it is the no body cavity is there, for example Platyhelminthes। और ये डायग्राम जो गिवन है ये आपकी बुक में अभी मैंने आपको शो किया था, go through this diagram। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। अच्छा, जब फूड सेल के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है तो उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं। जैसे कि अमीबा में आपने देखा है, पढ़ा है पिछली क्लासेस में, अमीबा में द डाइजेशन विल टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देयर इज नो एलिमेंट्री कैनाल। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल में जब जाकर डाइजेशन होगा देन इट इज कॉल्ड। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रीटेड इन द फूड वैक्यूल्स इन केस ऑफ इंट्रासेलुलर, क्योंकि 1 सेल है। देन एक्स्ट्रा सेलुलर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रीटेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। मोस्ट ऑर्गेनिज्म दैट यूज इंट्रासेलुलर डाइजेशन बिलोंग टू प्रोटिस्टा सच एज अमीबा, अभी मैंने बताया आपको, पैरामीशियम, इनमें ये एग्जाम्पल्स हैं। और जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक एनिलिड्स, क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स, ऑल दीज
are included in extracellular digestion. Next, difference between direct and indirect development. अभी मैंने आपको बताया था, if the larval stage is present तो indirect development कहलाएगा, egg के बाद larva बनेगा, and direct development में no larval stage is seen. जो young one होगा वो adult की तरह ही नजर आएगा, जैसे कि invertebrates और amphibians में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा और हायर एनिमल्स में एनालिड्स में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे थे. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इट इज इन्वर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट में इट इज फाउंड इन फिशेस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. What are the peculiar features that you find in parasitic helminthes? तो ये important question है बेटा कि parasitic platyhelminthes में अभी मैंने आपको बताया था hooks and suckers are present ताकि वो parasite के form में रह सकें. Locomotory organs present है, cilia, sensory organs are present like primitive eye, and they absorb nutrition. They have the ability to absorb nutrition directly from the host. So these are the important characteristics. Then flatworms are mostly hermaphrodite. The reproductive capacity is enhanced with most of their body lumen packed with testes and eggs. Next question, what are the reasons that you can think of arthropods to constitute the largest group of animal kingdom? तो सबसे ज़्यादा arthropods क्यों हैं? Because they have the ability, उनमें ability है जैसे diverse, एक तो बहुत सारी species present हैं, बहुत सारे life forms present हैं, and they have hard exoskeleton. हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहता है, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस जिससे वो बहुत फास्ट मूवमेंट कर पाते हैं. नाउ एज यू नो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकाइनोडर्मेटा. So children, these were the some of the important questions of your book exercise. Go through them properly, learn them, revise them, and now we have discussed all the important points and all the question answers. So children, this is all for today. Take care. Goodbye.